A very good morning to all of you children. Welcome to the maths class. We are doing the chapter measurement of mass. And in this chapter, till now, we have done non-standard units of measurement of mass, standard unit of measurement of mass, addition based on weights, subtraction based on weights. Okay? Now, what are the non-standard units? We will just do the revision in short and then we will proceed. Okay? पहले बहुत short में revision करेंगे and उसके बाद फिर word problems करेंगे. Now, the non-standard units for measurement of weight could be any random thing. कोई भी हम चीज़ लेकर के हम किसी और चीज़ को वेट कर सकते हैं, उसका हम मेजरमेंट ऑफ वेट ले सकते हैं. ठीक है ना. जैसे बताया, some very common things are stones, marble, then any fruit, any vegetable, any fruit can be used to measure the weight of some other vegetable. Any vegetable can be used to measure the weight of some fruit. We can use wooden blocks, we can use glass marbles, anything we can use. Okay, so these are non-standard units of measurement of weight, since they do not give a correct answer and the weight will vary from person to person. The weight will vary because if each person uses something else, अगर किसी भी एक सेम चीज़ को मेजर करने के लिए, उसका वेट लेने के लिए अगर हर कोई अलग अलग चीज़ यूज़ करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका वेट भी अलग अलग आएगा. वी डू नॉट गेट अ सेटिस्फाइड आंसर. ठीक है, इसीलिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत है. एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट इज़ किलोग्राम. किलोग्राम इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट. किलोग्राम जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट है, and which is written in short form as kg. And here you can see the different weights. These weights are in kilogram as well as in grams. Gram is a smaller unit which is used to weigh less weight. अगर कुछ कम वेट हो, छोटी चीज़ हो, उसका वेट लेने के लिए हम ग्राम यूज़ करते हैं. So here you can see different weights starting from 50 gram to 20 किलोग्राम. 20 किलोग्राम वेट जो है कब यूज़ करेंगे? जब सैक ऑफ राइस, सैक ऑफ वीट, जैसे बड़े बड़े जो राइस के, वीट के, चीनी के जो बड़े बड़े बैग्स होते हैं, उनको मेजर करना है तो वी कैन यूज़, shopkeepers use 20 kg. So depending on the weight, these different weights are used. Okay, gram is a smaller unit which is written as G in short form. 1 kilogram is equal to 1000 grams. That means 1000 grams make 1 kilogram. And एक मैंने एक और यूनिट बताई थी, मिलीग्राम. मिलीग्राम is even smaller unit and milligram is used to weigh something very small. कोई बहुत छोटी चीज़ होती है, उसको वे करने के लिए मिलीग्राम यूज़ करते हैं. And in short it is written as mg. In this lesson we have kilogram and gram. हमारे लेसन में यहाँ पे क्या क्या है? किलोग्राम है और ग्राम है. 1000 ग्राम मिलकर के 1 किलोग्राम बनाते हैं. That means 1 किलोग्राम जो है, 1 kilogram is divided into 1000 equal parts. 1 kilogram 1000 equal parts में divided है and each part is equal to 1 gram. So 1000 grams make 1 kilogram, or you can say 1 kilogram is equal to 1000 grams. Now we have done addition based on weights. We have done subtraction based on weight. Today we will be doing word problems based on weight, which includes addition and subtraction both. Okay? So let us start with the word problems. Okay. Now
the problem is given, you have to identify whether it is addition or subtraction, and then you have to do it accordingly. Sums are already written, so you will not have any problem in identifying whether it is addition or subtraction. इसमें आप देखोगे सम्स पहले ही लिखे हुए हैं, you can see, so you will not have any problem. आपको ये नहीं समझना होगा कि यहाँ पे एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी रिटन, लिखा हुआ है पहले से. द फर्स्ट इज द टोटल शुगर इन 2 bags इज. नाउ एज आई टोल्ड यू, इसके पहले वाले लेसन में भी मैंने बताया था कि देयर आर सर्टेन वर्ड्स, देयर आर सर्टेन की वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिफाइन वेदर इट इज़ एडिशन और सब्ट्रैक्शन. कुछ एक की वर्ड्स होते हैं जिनको कि हम देख करके बता सकते हैं कि ये एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है. नाउ हियर द वर्ड इज टोटल. द टोटल शुगर इन 2 bags इज. ओके, द टोटल शुगर इन 2 bags इज. नाउ हियर यू कैन सी 2 bags ऑफ शुगर. One weighs 4 kg and another bag weighs 5 kg. यहाँ पे आपको 2 bags दिखाई पड़ेंगे. एक बैग का वेट है 4 kg एंड एक बैग का वेट है 5 kg. नाउ यू हैव टू फाइंड द टोटल. टोटल मतलब पूरा मिला करके. तो इफ़ द वर्ड टोटल इज़ देयर इन द प्रॉब्लम, अगर ये वर्ड है टोटल, तो इसका मतलब है कि ये एडिशन है. टोटल मतलब सब मिला करके दोनों बैग्स में शुगर का वेट कितना है, इसका मतलब एडिशन है. 4 kg plus 5 kg. Now adding 4 plus 5, the answer is 9 kg. So the total sugar in 2 bags is 9 kg. So total is the key word here. If this kind of word is there, that means it is an addition sum. Now next is John weighs 20 kg. Elsa weighs 15 kg. Find their total weight. Now here also you can see the word total. Okay, find their total weight. In this problem also you can see the total. That means you have to find the sum. John का weight है 20 kg और Elsa का weight है 15 kg. Find their total weight. मतलब जॉन और एल्सा का मिला करके वेट कितना होगा, दिस यू हैव टू फाइंड. ओके, तो दोनों का मिला के टोटल वेट, दैट मीन्स अगेन इट इज एडिशन. सो अरेंजिंग द वेट्स इन प्रॉपर कॉलम्स, 20 kg प्लस 15 kg. Now 20 plus 15 is equal to 0 plus 5 is 5, as when 0 is added to any number or any number is added to 0, answer is 5. So 0 plus 5 is 5 and 2 plus 1 is 3. Okay, so total weight of John and Elsa is 35 kg. 20 kg plus 15 kg is equal to 35 kg. Next is a fruit seller bought 76 kg apples and 14 kg grapes. Find the total weight of the fruits he bought. उसने कितना एप्पल खरीदा? He bought 76 kg apple and he bought 14 kg grapes. 76 kg apple खरीदा and 14 kg grapes खरीदा. Find the total weight. Again you can see the word total weight. Total weight मतलब सब मिला करके उसका weight कितना हुआ. Find the total weight of the fruits he bought. मतलब सब मिला करके उसने जितने fruits खरीदे उसका weight कितना हुआ. ठीक है, तो 76 kg plus 14 kg. First we have to arrange the weights in proper column. सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें वेट्स को प्रॉपर कॉलम में अरेंज करना होता है. और प्रॉपर कॉलम में अरेंज करना मतलब वंस को वंस प्लेस के नीचे एंड टेंस को टेंस प्लेस के नीचे लिखना. ठीक है ना. तो 76 kg
plus 14 kg. Now 6 plus 4 is equal to 10. So here in 10, 0 is 1's place. So here we write 0 and carry forward this 1 to the 10th place. Okay. इस 110 को हम 10th place पे carry forward करेंगे. तो 7 plus 1 8 plus 1 9. So the total weight of the fruits he bought is 90 kg. Okay. मतलब 76 kg एप्पल और 14 kg ग्रेप्स का टोटल वेट कितना है? 90 kg. नेक्स्ट इज 3 girls weigh 20 kg, 22 kg and 17 kg. Find their total weight. मतलब 3 girls का वेट है 20 kg. वे इज द वर्ब. वेट नाउन है, वेट कितना उसका वजन है, एंड वे मतलब वर्ब है. वे मतलब उसको वजन, उनका वजन इतना है. ओके. 3 girls weigh 20 kg, 22 kg and 17 kg. 3 girls का वेट कितना है? एक का 20 kg है, दूसरी का 22 kg है और तीसरी का 17 kg है. ठीक है. फाइंड देयर टोटल वेट. उनका टोटल वेट कितना होगा? अगेन फाइंड देयर टोटल वेट. टोटल वेट मतलब फिर सब मिला करके कितना वेट हुआ. सो दैट मीन्स अगेन वी हैव टू ऐड द 3 वेट्स. सो फर्स्ट अरेंजिंग द वेट्स इन प्रॉपर कॉलम. पहले हमने वेट्स को प्रॉपर कॉलम में हमने अरेंज किया. 20 kg, 22 kg and 17 kg. Now adding these three, 0 plus 2 plus 7. Now 0 is, if 0 is added to any number, किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो आंसर क्या होगा? द नंबर इटसेल्फ. तो 0 plus 2 कितना होगा? 2 and 2 plus 7 is 9. तो 0 plus 2 plus 7 is 9 and 2 plus 2 4 plus 1 5. So find their total weight. Their total weight is 59 kg. Okay. Again here the word is total weight. And in addition or subtraction we start from 1's place. Okay. और तो addition subtraction में कोई difference नहीं है. We always start from 1's place. So here also we start from 1's place. Next is 3 bags of salt weigh 98 kg, 90 kg and 56 kg. Find their total weight. Now again here the keyword is total. Find their total weight. मतलब सॉल्ट के 3 बैग्स का कितना वेट है? 98 kg, 90 kg एंड 56 kg. मतलब एक बैग का वेट है 98 kg, एक बैग का वेट है 56 kg एंड एक बैग का वेट है 90 kg. फाइंड देयर टोटल वेट. यहाँ पे फिर क्या करना है? उनका टोटल वेट पता करना है. ओके. सो अगेन वी फर्स्ट राइट द वर्ड प्रॉब्लम्स. राइट द वेट्स इन प्रॉपर कॉलम. 98 kg, 90 kg एंड 56 kg. प्रॉपर कॉलम में लिखने का मतलब है कि 1's place in 1 column and 10's place in 1 column. And if 100's place is also there, then 100 place in 1 column. मतलब ऐसा नहीं है कि 10th column की जो डिजिट है उसको 1's में लिख दिया, 1's की डिजिट कहीं और लिख दिया. अगर ऐसे करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा. तो सारे 1's प्लेस पे जो डिजिट है वो सारे एक कॉलम में आना चाहिए. 10th प्लेस की जो डिजिट है वो एक कॉलम में आना चाहिए. और 100 कॉलम प्लेस की जो डिजिट्स है वो सारी एक कॉलम में आना चाहिए. ओके. स्टार्टिंग फ्रॉम 1's प्लेस 8 plus 6 is equal to 14. Now in 14 the digit at 1's place is 4. So we write here 4 and carry forward this one to the 10th place. ये जो 110 है इसको हम 10th place पे carry forward करेंगे. Now adding this. Now here you have to add 3 numbers and plus this one. आपको यहाँ पे 3 numbers को ऐड करना है और उसमें इस 1 को ऐड करना है. Now you can add this in any way which is convenient to you. मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले 9 + 9 + 5 को ऐड करने के बाद ही उसमें 1 ऐड करें.
आप पहले चाहो तो 9 + 1 ऐड कर लिया, फिर उसमें 9 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, या आपने पहले 5 और 9 को ऐड कर लिया, देन उसमें 9 ऐड किया, या उसमें 1 ऐड किया। आंसर सब में सेम आएगा बिकॉज वी आर एडिंग द नंबर्स। हम सारे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। आप किसी भी नंबर को पहले ऐड करो, किसी को बाद में ऐड करो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि हम अल्टीमेटली सारे नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो डिपेंड्स कैसे हमको कन्वीनियंट लगता है। तो मैं पहले क्या ऐड करूँगी, 9 + 1 10। ओके, पहले मैंने इस 1 कैरी फॉरवर्ड वाले 1 एंड 9 को ऐड किया, सो 1 + 9 इज 10, देन 10 + 9 इज 19 एंड 19 + 5 इज 19 के बाद 5 में और फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24. Now this is 24. So in 24, the digit at once is 4. So this 4 will be written here at tens place and this 2 will be moved to the 100 place. ठीक है, इसके पहले भी मैंने एडिशन में बताया था कि if the sum of the digit at tens place is 10 or more than 10, मतलब अगर टेंस प्लेस की जो डिजिट्स हैं उनका जो सम है वो अगर 2 डिजिट्स में आता है तो हमको कैसे लिखना है। इफ़ यू राइट इट लाइक 2 4 4 देन इट वुड बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा आपका। ओके, जैसे पहले 8 + 6 इज़ 14, तो वंस प्लेस पे 4 है, वी हैव रिटन इट हियर, 4 हमने यहाँ लिखा और इसका 1 जो है वो हमने 1 10 को टेंस प्लेस पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। नाउ एडिंग द डिजिट एट टेंस प्लेस वी गेट 24। जब टेंस प्लेस के हमने डिजिट को ऐड किया तो आंसर आया 24। सो व्हेन यू राइट 24, इस 24 का जो वंस प्लेस के डिजिट है वो आप यहाँ पे टेंस प्लेस के नीचे लिखोगे और जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो 100 प्लेस पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है। इफ़ यू डू नॉट राइट द आंसर एट प्रॉपर प्लेस, अगर आंसर में जो डिजिट्स हैं उनको प्रॉपर प्लेस पे नहीं लिखोगे तो आपका पूरा सम गलत हो जाएगा, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज कनिका बॉट 4 kg 250 ग्राम राइस एंड हरजीत बॉट 3 kg 500 ग्राम राइस। हाउ मच राइस डिड दे बाय ऑल टुगेदर? कनिका ने कितना राइस खरीदा? 4 किलोग्राम 250 ग्राम। हरजीत ने कितना राइस खरीदा? 3 किलोग्राम 500 ग्राम। उन लोगों ने सब मिला करके कितना राइस खरीदा? अगेन द वर्ड हियर इज हाउ मच राइस डिड दे बाई ऑल टुगेदर। सो ऑल टुगेदर इज द की वर्ड हियर। ऑल टुगेदर मतलब सब मिला करके उन लोगों ने कितना राइस खरीदा। ठीक है ना, दिस इज अगेन की वर्ड, दैट मीन्स यू हैव टू ऐड। कनिका ने कितना राइस खरीदा? 4 kg 250 ग्राम। हरजीत ने कितना राइस खरीदा? 3 kg 500 ग्राम। Now we have to add because we have to find how much rice did they buy all together. सब मिला करके उन लोगों ने कितना राइस खरीदा। Adding 4 किलोग्राम, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप इज टू अरेंज द वेट्स इन प्रॉपर कॉलम। पहला स्टेप क्या है कि आपको जो वेट्स हैं इनको प्रॉपर कॉलम में लिखना है। ओके, नाउ आफ्टर अरेंजिंग देन वी स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर यूनिट। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलर यूनिट, दैट मीन्स फ्रॉम ग्राम। ग्राम में भी वी स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस। 0 + 0 is 0, then 5 + 0 is 5 because any number added to 0 or 0 added to any number is that number only. आप चाहे 5 + 0 करो, चाहे 0 + 5 करो, the answer would be 5 only. Then 5 + 2 is 7. And adding kilogram, 4 + 3 is equal to 7. तो आंसर कितना हो गया? How much rice did they buy altogether? They bought 7 kg 750 ग्राम। कितना राइस खरीदा? 7 kg 750 ग्राम ऑफ राइस। दे बॉट 7 kg 750 ग्राम ऑफ राइस ऑल टुगेदर। इसको आप अगर बोलो 7, अगर आप इफ़ यू राइट द आंसर एज 7750 देन योर आंसर इज रॉन्ग।
then it is wrong. Okay, because it is not 7750. It is 7 kg 750 gram. So you have to write like this. Measurement of weight, measurement of length, measurement of capacity, जहाँ कहीं भी unit है, you have to write along with the unit. यहाँ पे हम weight का measurement कर रहे हैं, तो you have to write the weight along with the unit. Okay? If you do not write the unit, आपका आंसर फिर incomplete हो जाएगा, wrong भी होगा. Now next is Rajiv bought 3 kg 400 gram mangoes and Anil bought 2 kg 350 gram mangoes. Find the total weight of the mangoes. मतलब राजीव ने 3 kg 400 ग्राम मैंगोज लिया और अनिल ने कितना मैंगोज खरीदा? अनिल ने 2 kg 350 ग्राम मैंगोज लिया. फाइंड द टोटल वेट ऑफ द मैंगोज. दोनों ने मिला करके कितना मैंगो लिया? अगेन हियर द कीवर्ड इज टोटल वेट. ठीक है, टोटल वेट मतलब आपको ऐड करना है. तो वी विल ऐड 3 kg 400 gram and 2 kg 500 gram. Now adding these two, 0 plus 0 is 0, 0 plus 5, 5, 4 plus 3, 7 and 3 plus 2, 5. So find the total weight of the mangoes. Total weight of the mangoes is 5 kg 750 gram. Okay. Here the keyword is total weight. So the total weight of the mangoes is 5 kilogram 750 gram. Okay, 5750 is not the answer. अगर ऐसे आप लिखोगे, एडिशन करने में तो ऐसे ही हम लिखेंगे, but then you have to write the answer. ये इस तरह से आंसर लिखना ज़रूरी है. Okay. Next is Madhav bought 47 kg of mangoes. Sumit bought 39 kg of mangoes. Who bought more mangoes and how much? Now see the difference here. माधव ने कितना मैंगोज खरीदे? 47 kg. और सुमित ने कितना मैंगो लिया? 39 kg. किसने ज़्यादा मैंगोज खरीदा और कितना ज़्यादा? Now here who bought more mangoes? यहाँ पे क्या है? कंपैरिजन है. and how much मतलब किसने ज़्यादा मैंगो खरीदा और कितना ज़्यादा. यहाँ पे कंपैरिजन करना है. दैट मीन्स बाय सीइंग द वर्ड प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को देख करके वी कैन से दैट माधव ने 47 kg मैंगो खरीदा है और सुमित ने 39. तो ये तो हम देख करके ही बता सकते हैं कि माधव ने ज़्यादा मैंगो खरीदे, बिकॉज 47 इज़ ग्रेटर देन 39. तो ये तो हम देख के ही बता सकते हैं कि माधव ने ज़्यादा मैंगो लिए. बट हाउ मच, कितना ज़्यादा? दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस. कितना ज़्यादा मतलब 47 एंड 39 का डिफरेंस निकालना है. नाउ 47 kg माइनस 39 kg. अभी 7 में से हम 9 माइनस नहीं कर सकते. सो व्हाट डू वी डू? वी बोरो 110 फ्रॉम हियर. 10 प्लेस से हम 110 बोरो करेंगे. जब 110 बोरो किया तो यहाँ पे वी आर लेफ्ट विथ when we borrow 110 from 4 tens, we are left with 3 tens and this becomes, और इस 110 को जब हम 7 के साथ ऐड करेंगे तो this will become 17. Now 17 minus 9 would be कितना होगा? 8. 17 minus 9 is 8 and here it is 3. 3 minus 3 is 0. So whether you write 0 or you do not write this 0, it will not make any difference. आप ये 0 लिखो चाहे मत लिखो, कोई डिफरेंस नहीं होगा. So who bought more mangoes and how much? किसने कितना ज़्यादा लिया मैंगो और कितना ज़्यादा लिया? किसने ज़्यादा लिया ये तो हम देख के बता सकते हैं. माधव bought more mangoes and how much? 8 kg. So Madhav bought more mangoes by
8 kg. ओके, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हमें डिफरेंस निकालना है. सो वी विल डू द subtraction. Now next is a packet weighs 3 kg 850 gram, whereas another packet weighs 2 kg 300 gram. एक पैकेट जो है वो 3 kg 850 ग्राम वेट करता है, मतलब एक पैकेट का वेट जो है वो 3 kg 850 ग्राम है, और दूसरे पैकेट का वेट है 2 kg 300 ग्राम. फाइंड द डिफरेंस इन देयर वेट्स. यहाँ पे तो इट इज़ क्लियरली रिटन फाइंड द डिफरेंस. डिफरेंस का मतलब ही है सब्ट्रैक्शन. इट इज़ रिटन क्लियरली हियर फाइंड द डिफरेंस. डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन. सो 3 kg 850 ग्राम minus 2 kg 300 gram. Subtracting 0 minus 0 is 0, 5 minus 0 is 5, 8 minus 3 is 5, and 3 minus 2 is 1. So find the difference in their weights. The difference in their weights is 1 kilogram 550 gram. Okay. यहाँ पे द वर्ड जो डिफरेंस वर्ड है, डिफरेंस का मतलब ही सब्ट्रैक्शन है. दैट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. नाउ नेक्स्ट इज द वेट्स ऑफ 2 बॉक्सेस आर 3 kg 150 ग्राम एंड 2 kg 30 ग्राम रेस्पेक्टिवली. रेस्पेक्टिवली का मतलब है, सिंस यहाँ पे लिखा है 2 बॉक्सेस, तो रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि फर्स्ट बॉक्स का वेट है 3 kg 150 ग्राम और सेकेंड बॉक्स का वेट है 2 kg 30 ग्राम. फाइंड द डिफरेंस इन देयर वेट्स. नाउ अगेन द वर्ड डिफरेंस इज गिवन हियर. डिफरेंस का मतलब ही सब्ट्रैक्शन है. दैट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. तो 3 kg 150 ग्राम माइनस 2 kg 030 gram. Now see, it is written 030. 030 को हम क्या रीड करेंगे? We will read it as 2 kg 30 gram only. यहाँ पे 0 ऐड कर दिए. See here it is written, यहाँ पे 2 kg 30 gram लिखा है. जब हमने सम को, जब हमने वेट्स को कॉलम में अरेंज किया तो it is written here 0. Why? जिससे कि ये 030 and 150 दोनों सिमिलर रहें, दोनों में 3 डिजिट्स हों. ये वाला 0 आप लिखो चाहे मत लिखो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द आंसर. नाउ सब्ट्रैक्टिंग 0 minus 0 is 0, 5 minus 3 is 2, 1 minus 0 is 1, and 3 minus 2 is 1. So the difference in their weights is 1 kilogram 120 gram. Okay. Now next is 2 packets of books weigh 3 kilogram 120 gram and 2 kilogram 100 gram respectively. Again respectively का मतलब है कि फर्स्ट पैकेट का वेट है 3 किलोग्राम 120 ग्राम और सेकेंड पैकेट का वेट है 2 किलोग्राम 100 ग्राम. ओके, तो उन दोनों के वेट्स में कितना डिफरेंस है? नाउ सब्ट्रैक्टिंग अगेन द की वर्ड इज डिफरेंस. दैट मीन्स हमें सब्ट्रैक्शन करना है. सो 3 kg 120 ग्राम में से 2 kg 100 ग्राम. तो 0 minus 0 is 0, 2 minus 0 2, 1 minus 1 is 0 and 3 minus 2 is 1. So the difference in the weights is 1 kilogram 020 gram. You can also write this as 1 kilogram 20 gram. It is not necessary to write this 0. You can write it 1 kilogram 020 gram or you can write it as 1 kilogram 20 gram. Both are same. Next is a man bought 3 kg 250 gram rice. He used 2 kilogram 100 gram from it. How much rice is left? मतलब एक आदमी ने 3 किलोग्राम 250 ग्राम राइस लिया और उसमें से उसने 2 किलोग्राम 100 ग्राम यूज़ कर लिया. हाउ मच राइस इज़ लेफ्ट, मतलब कितना राइस बचा है. द की वर्ड हियर इज़ लेफ्ट. कोई सामान आपने कोई चीज़ लिया और उसमें से जब आपने कुछ ले लिया तभी बचेगा कि कितना बचा, तभी आप क्वेश्चन पूछोगे ना.
मम्मी ने तुमको 5 टॉफ़ीज़ दी, तुमने 3 खा ली। मम्मी ने बोला 5 में से तुमने 3 टॉफ़ीज़ खा ली, कितनी टॉफ़ीज़ बची? तो अब क्या करोगे? अब 5 में से 3 माइनस करोगे। तो सिमिलरली यहाँ पे उसने 3 kg 250 ग्राम राइस ख़रीदा और उसमें से उसने 2 kg 100 ग्राम राइस यूज़ कर लिया। कितना राइस बचा? सो 3 kg 250 ग्राम minus 2 kg 100 gram. Now subtracting, 0 minus 0 is 0, 5 minus 0 is 5, 2 minus 1 is 1, 3 minus 2 is 1. So, okay. So how much rice is left? 1 kilogram 150 gram rice is left. Left is the keyword here. कितना राइस बचा? Okay. Next is, a lady bought 5 kg 800 gram vegetables. She used 2 kg 500 gram. How much vegetables are left? Again the word left is here. Okay, that means you have to find the difference. मतलब एक लेडी ने 5 किलोग्राम 800 ग्राम वेजिटेबल ख़रीदा और उसमें से उसने 2 किलोग्राम 500 ग्राम यूज़ कर लिया। तो कितनी वेजिटेबल बची? 5 kg 800 ग्राम माइनस 2 kg 500 ग्राम. Subtracting, 0 minus 0 is 0, 0 minus 0 is 0, 8 minus 5 is 3 and 5 minus 2 is 3. So how much vegetables are left? 3 kilogram 300 gram. Okay. Now see, 0 on the left side of any number, like this is 3. If I write 0 here, so it will be 3 only. Okay. But 3, and if I add 1 0 after 3, then it is 30. This is 3 only, but this is 30. So 0 on the left side of any number does not hold any value. 3 के लेफ्ट साइड में अगर हम किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में 0 लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. बट if we add 0 after the digit, then definitely it has a value. Now next is, a basket of apple weighs 3 kg 100 gram. Another basket weighs 5 kg 250 gram. Find the difference in their weights. मतलब एप्पल की बास्केट है, एक बास्केट का वेट है 3 kg 100 ग्राम और दूसरी बास्केट का वेट है 5 kg 250 ग्राम. दोनों के वेट्स में कितना डिफरेंस है? अगेन द कीवर्ड इज डिफरेंस. ओके. नाउ हियर 3 kg 100 ग्राम इज रिटन फर्स्ट एंड 5 kg 250 ग्राम इज रिटन लेटर, मतलब उसके बाद में लिखा है. बट आप 3 kg 100 ग्राम में से 5 kg 250 ग्राम तो माइनस कर नहीं सकते हो. सो सब्ट्रैक्शन में याद रखो, हमेशा वी ऑलवेज राइट द बिगर नंबर ऑन टॉप. जो बड़ा नंबर होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं. तो हियर फर्स्ट यू विल राइट 5 kg 250 ग्राम एंड देन 3 kg 100 ग्राम. नाउ सब्ट्रैक्टिंग, 0 minus 0 is 0, 5 minus 0 is 5, 2 minus 1 is 1 and 5 minus 3 is 2. So the difference in their weights is 2 kilogram 150 gram. So this is how the word problems are done. Now here the sums are already written. इसीलिए आपको sums लिखे हुए हैं, इसीलिए आपको ये नहीं सोचना पड़ रहा है कि यहाँ पे हमें एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है. ओके. लेकिन अगर सम्स नहीं लिखे हैं, सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई? अगर सम्स नहीं लिखे हैं तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये एडिशन सम है कि सब्ट्रैक्शन है? वी सी द कीवर्ड्स. जो उसमें जो मेन वर्ड होता है क्वेश्चन में, द क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस इन द वेट्स. इतना जो ऊपर का है ये तो अभी स्टेटमेंट दिया है. दिस इज़ द एक्चुअल क्वेश्चन, मतलब ये हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में लिखा है. तो इसमें जो कीवर्ड है, इसमें जो मेन वर्ड है वो आपको देख करके अकॉर्डिंगली एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है. ओके. So I hope this is clear to all of you. So children, I will stop here only. We have completed the lesson. My next class, I will start a new lesson. Okay. Thank you children.